Okay, so we are continuing with our chapter mensuration. Our first exercise, practice set 7.1, was not complete. Okay, so we're going to continue with that exercise itself. So in part 1, we had seen question number 1, 2, 3, 4, 6, 9, and 11. Why did I club this together? When ये सब साथ में किए थे because all of them were of the same type. What was the type? Surface area and volume of three-dimensional figures or any shapes. Okay, so these part 1 sums all were based on surface area का formula and volume का formula. In part 2, we are going to see the remaining sums, which is 5, 7, 8, 10, 12. Okay, out of that, fifth sum is a little different. In fifth sum, the shape of one object is going to change into a different shape. That's another type. And the remaining sums, 7, 8, 10, 12, those questions are basically of the type where a figure is made up of two or more shapes. Okay, for example, if I draw a cylinder, और उसके नीचे एक हेमिस्फीयर है, सो ये वाला पार्ट हो गया हेमिस्फीयर और ऊपर वाला पार्ट हो गया सिलेंडर. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू शेप्स, राइट. सो ये जो लास्ट के चार सम्स है 7, 8, 10, 12, ये कॉम्बिनेशन ऑफ शेप टाइप के सम्स है. ओके, सो टुडे इन दिस पार्ट वी गोइंग टू see these types of sums. Okay, so note these sums, and again, like always, try to solve these sums by yourself. You all have the textbook now. I've given you the exercise number. I've given you the exercise number and the sums we're going to solve today. Try to solve these sums by yourself and see where you're finding it difficult. कहाँ पे गलत हो रहा है, तुम लोग का कैलकुलेशन गलत हो रहा है, यूनिट कन्वर्जन गलत हो रहा है, स्ट्रैटेजी में गलत हो रहा है, स्टार्ट कैसे करना है उसमें ही गलती हो रही है, क्वेश्चन को समझने में गलती हो रही है. वंस यू डू इट बाय योरसेल्फ, और फिर जब तुम ये वीडियो देखोगे देन यू कैन कंपेयर कहाँ पे गलत हो रहा था और कहाँ पे इम्प्रूव करना है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज. So you're starting with the fifth sum. Fifth sum, remember, is the type of the sum where one shape is changing into another shape. Okay, so I'll quickly read the problem first. The dimensions of a cuboid are 44 centimeter, 21 centimeter, and 12 centimeter. There's a cuboid, and these are its dimensions. So let me quickly draw it, because drawing a rough diagram always helps. So this is my cuboid. Its length is 44 centimeter. So length is 44 centimeter, breadth is 21 centimeter, and height is 12 centimeters. Okay, then the next statement is it is melted and a cone of height 24 centimeter is made. Okay, so इसको melt करके cone बना रहे. So this is my cone. Its height is 24 centimeters. So height बोला है यानी it has to be perpendicular height. Okay, so height is 24 centimeters. Find the radius of its base. So ये जो radius है उसका value find out करना है. Okay, so after drawing the diagram it becomes very clear in our mind कि actual में क्या हो रहा है. So there is a cuboid को melt करके cone बना रहे. Cuboid के dimensions पता है, कोन का हमें हाइट पता है और उसका रेडियस फाइंड आउट करना है. अभी जब किसी एक शेप को मेल्ट करके दूसरा शेप बनाएंगे, दोनों में क्या सेम रहेगा? जितना मटेरियल इस शेप को बनाने में यूज हुआ उतना ही मटेरियल इस शेप में रहेगा, राइट, क्योंकि इसी को मेल्ट करके ये वाला बना है. सो दोनों में क्या सेम रहेगा? दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा. वॉल्यूम क्या है? तो कितना मटेरियल यूज किया था वो शेप बनाने के लिए. सो इसका जो वॉल्यूम है सेम इसी का वॉल्यूम बनेगा. सो यू फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करके इसके वॉल्यूम के फॉर्मूला में रख दो, और इसके वॉल्यूम के फॉर्मूला में रेडियस एक वेरिएबल बच जाएगा, रेडियस उस फॉर्मूला से आ जाएगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. फर्स्ट आई विल राइट गिवन. So first I have a cuboid, right? So let me write in the brackets cuboid. और उसका लेंथ है L इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर्स, हाइट है 12 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट आई हैव अ कोन, एंड कोन का हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर्स. नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम. ओके, क्यूबॉइड का हाइट भी हमने h लिया है और कोन का हाइट भी h ले रहे हैं. दोनों को हम लोग h नहीं ले सकते, दोनों को डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, राइट. सो हम
क्यूबॉइड की हाइट को h1 ले लेंगे, कोन के हाइट को h2 ले लेंगे, सो दैट इज h1 एंड h2. ओके, सो आवर गिवन इज डन. नेक्स्ट इज टू फाइंड किसका फाइंड करना है हमें, कोन का रेडियस फाइंड आउट करना है, राइट. रेडियस you are finding radius of cone equal to r equal to what? Okay, so our to find is also ready. Last what we want is solution. So we know the steps already. हमें पहले क्या करना है, हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है. So volume of a cuboid. So volume of, let me write this in full form. Volume of cuboid. Always write the formula because formula has different set of marks allotted. Okay, so length into breadth into height. but यहाँ पे height के यहाँ पे h1 लिख रहा क्योंकि हमने cuboid का height h1 लिया. Okay, now substitute the values. 44 into 21 into 12. ओके, और मैं भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बहुत बड़ा नंबर मिलेगा. इसको फिर बाद में मुझे इक्वेट करना है कोन के वॉल्यूम से, और कोन के वॉल्यूम से इक्वेट करके फिर बाद में वापस मुझे इस बड़े नंबर से डिवाइड करते रहना पड़ेगा कॉमन लेके. सो मैं इसको ऐसे के ऐसे रखूँ क्योंकि मुझे पता है आगे एक दूसरे फॉर्मूला से इसको इक्वेट करने वाला हूँ. सो आई कीप इट एज इट इज. ओके, आई विल नेम दिस एज 1. Next, I'll have to put this in the formula for volume of a cone. So first let me write कि दोनों का volume same होगा. Okay, volume of cone is equal to volume of cuboid. This I know, right? सो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है, अरे मैं इसको याद कैसे करता हूँ, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दो. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, फिर इसको डिवाइड बाय 3 कर दो. दैट्स हाउ आई रिमेंबर वॉल्यूम ऑफ अ कोन. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, विच इज 44 into 21 into 12. ओके, एंड दिस इज फ्रॉम 1 कि इसको हमने 1 लिया. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर. यहाँ पे मैं 22/7 ले लेता हूँ पाई को, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे कहीं पे कैंसिल हो सकता है. 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमें ढूंढना है, रेडियस हमें ढूंढना है, राइट. हाइट यहाँ पे अगेन फॉर्मूला में मैं h2 लिखूंगा बिकॉज हमने कोन का हाइट h2 लिया. ओके, सो h2 इज 24 इज इक्वल टू 44 into 21 into 12. अभी रेडियस को एक ही जगह पे रहने दो, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाओ. सो रेडियस फाइंड आउट करना है ना, उसको वहीं पे रहने दो, बाकी सबको दूसरे साइड लेके चले जाओ. सो आई विल कीप आर स्क्वायर हियर ओनली. देन ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ओ आई फॉरगॉट द 3. सो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 भी है, राइट. सो मैं 24 डिवाइड बाय 3 लिख देता हूँ. फॉर्मूला में ऑलरेडी डिवाइड बाय 3 था, वो मैं लिखना भूल गया था. ओके, सो रेडियस एक तरफ रखूंगा, बाकी सबको दूसरी तरफ. तो यहाँ पे ऑलरेडी 44 into 21 into 12 था. यहाँ पे जो डिवाइड होगा वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे क्या क्या डिवाइड होगा, 7 into 3. तो 7 into 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया. नेक्स्ट यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो गया वहां पे जाके डिवाइड होगा. सो यहाँ पे 22 और 24 मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 22 and 24 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. ओके, नाउ आई विल हैव टू कैंसिल. ओके, कॉमन लेके मुझे कैंसिल करना होगा. सो let me start by 22. So 22 ones are 22, 2s are 44. Next यहाँ पे 12 दिख रहा है मुझे. So 12 ones are 12, 2s are 24. फिर 2 ones are 2 ones are. So what I'm left with is 21 into 7 into 3. Okay. But again मैं वापस I'll try to be smart and strategic about my calculations. यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 7 into 3. 7 into 3 क्या है, 21 है, राइट. और यहाँ पे r स्क्वायर है. अगले स्टेप में इसका स्क्वायर रूट लेने वाला हूँ रेडियस फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेगा.
सो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आई कीप इट एज 21 into 21, 7 3 21 और यहाँ पे 21 ऑलरेडी है, सो आई कीप दिस एज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 into 21. Next step will be taking square root on both sides. Taking square root on both sides. Okay. So यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी है, स्क्वायर स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सो आई विल गेट r on LHS. RHS में स्क्वायर रूट ऑफ 21 into 21. एंड अबाउट स्क्वायर रूट्स भी नो, जो कुछ भी अंदर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर आके एक बार हो जाएगा, तो अंदर क्या बचे, कुछ भी नहीं, सो आई कैन अज्यूम इट इज मल्टीप्लाई बाय 1. यहाँ पे इंटू 1 भी है समझो, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, सो व्हाट विल आई बी लेफ्ट विद, r इज इक्वल टू 21. इसके यूनिट्स क्या होंगे, इफ यू सी यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेंटीमीटर में था, हाइट भी सेंटीमीटर में था, तो सब कुछ हमने फॉर्मूला में सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट किया, सो इसका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा. So how will you write your final answer? Always write your final answer in complete sentence. Okay. So question क्या था? Find the radius of its base. So the radius of the base of the cone is 21 centimeters, and then box it up with pencil. This is your solution to question number 5. Okay, all you have to remember in this question was अगर एक शेप को मेल्ट करके दूसरे शेप में बना दिया, दोनों में क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा. Just apply that formula. Volume of both the shapes is equal to each other, and then the answer is pretty straightforward, very easy. Okay, let's see the next sum. Okay, so question number 7. It looks very complicated, so what we are going to first do is we'll just read the problem and draw the diagram and then think how to solve it. Okay, so the question says a cylinder and a cone have equal bases. Okay, एक cylinder है एक cone है, दोनों के base equal है, क्योंकि cone के नीचे एक circle होता है और cylinder के ऊपर नीचे दो circle है, ये bases है अपने अपने shape के. Okay, so जो circle है उसका area same होगा, इसका मतलब इक्वल बेसिस होगा. ओके, सो अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस, मतलब उसमें जो सर्कल्स होंगे उसके एरिया सेम रहेंगे. द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो लेट मी ड्रॉ दैट. लेट मी फर्स्ट ड्रॉ सिलेंडर. सो दिस इज माय सिलेंडर. उसमें क्या बोले, इसका हाइट है 3 सेंटीमीटर. सो ये रेडियस, so its height is 3 centimeters. Okay, and area of its base is 100 centimeter square. So ये जो base है इसका area होगा 100 centimeter square. Okay, the cone is placed on top of the cylinder. सिलेंडर के ऊपर वो कोन रख रहे हैं और दोनों का जो बेस है उसका एरिया सेम है, राइट. सो ये बराबर इसके ऊपर फिट हो जाएगा. Okay, so a cone is placed on the top of the cylinder. Volume of the figure so formed is 500 centimeter cube. यानी ये जो नया फिगर फॉर्म हुआ है इसका वॉल्यूम होगा 500. So let me assume कि इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है. So V1 plus V2 दोनों का वॉल्यूम्स ऐड करके कितना आना चाहिए, 500 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आना चाहिए. फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर. ओके, सो पूरा जो नया फिगर बना उसका हाइट फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट मी ड्रॉ दैट हाइट. ये हाइट फिगर आउट करना है. ओके, सो लेट मी से दिस एज H1 एंड दिस एज H2. सो मुझे बेसिकली H1 प्लस H2 फाइंड आउट करना है. उसमें से भी मुझे H2 ऑलरेडी पता है, ये गिवन था. H2 क्या है, 3. सो H1 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, तो मुझे बस H1 फाइंड आउट करना है. इसका अगर हाइट फाइंड आउट कर लिया मैंने तो उसको मैं 3 ऐड कर दूंगा और मुझे टोटल हाइट मिल जाएगा, राइट. सो अभी सवाल है कि ये इसका हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, और हमारे पास इंफॉर्मेशन किसका है, वॉल्यूम का है. वॉल्यूम से भी सिर्फ कोन का नहीं है, पूरे कंबाइंड शेप का है.
सो लेट अस बैक कैलकुलेट. बैक कैलकुलेट यानी क्या क्या पूछा है वो देखो और उसके हिसाब से पीछे पीछे कैलकुलेट करो. सो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, राइट. सो यहां पे मुझे रेडियस भी चाहिए. इसमें आई वांट टू फाइंड आउट एच, हाइट ढूंढना है मुझे. उसमें मुझे रेडियस भी लगेगा और वॉल्यूम ऑफ कोन भी लगेगा. तो ये दोनों मुझे अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो लेट मी फर्स्ट फाइंड आउट रेडियस. ओके, सो मैं रेडियस पहले फाइंड आउट करूंगा. किसमें से? इसमें से. यहाँ मुझे एरिया पता है. एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, राइट. सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर. इसमें पाई का वैल्यू मुझे पता है और 100 यहाँ पे लिखा है. सो मुझे आर का वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ का जो रेडियस है वही रेडियस यहाँ पे होगा. सो मुझे रेडियस यहाँ से मिल जाएगा. सो आई फर्स्ट फाइंड रेडियस. रेडियस फ्रॉम बेस एरिया. सो मुझे यहां से रेडियस मिल जाएगा बेस एरिया का. तो ये फाइंड आउट हो जाएगा. फिर वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है मुझे. वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे फाइंड आउट करूंगा? मुझे पूरा का पूरा वॉल्यूम पता है. अगर पूरा का पूरा वॉल्यूम पता है, मुझे सिर्फ कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो मैं क्या कर सकता हूँ? पूरा का पूरा वॉल्यूम माइनस सिलेंडर का वॉल्यूम, मुझे कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, let me write it down. I know कि volume of cone is equal to volume of total shape minus volume of cylinder, बराबर. सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? पूरा का पूरा शेप का वॉल्यूम माइनस सिलेंडर का वॉल्यूम. सो इसमें वी टोटल मुझे पता है क्या? वी टोटल, हाँ ये दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस आई नो. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है क्या? नहीं पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंडर का हाइट पता है? यस. सिलेंडर का रेडियस पता है? हाँ. ऊपर वाले स्टेप में हमने यहाँ से रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया. तो रेडियस भी पता है, पाई का वैल्यू पता है. तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आ जाएगा. सो अभी हमारे पास सब कुछ है. इसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन निकल जाएगा. इसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा. रेडियस यहां से आ जाएगा फर्स्ट वाले स्टेप से. सो वॉल्यूम ऑफ कोन है, रेडियस है, बचा क्या? हाइट. तो यहाँ से हाइट भी आ जाएगा. सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स है. तुम लोग को इसके बारे में कैसे सोचना था? तुम लोग को ढूंढना था. अच्छा पूछा क्या है? पूछा क्या है? टोटल हाइट पूछा है. टोटल हाइट के लिए मुझे हाइट ऑफ कोन चाहिए, हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए. हाइट ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी दिया है, यानी मुझे सिर्फ हाइट ऑफ कोन चाहिए. हाइट ऑफ कोन में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? मुझे वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन पता है. सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख दिया. अब मैंने देखा हाइट तो यहाँ पे मिल जाएगा, बट क्या क्या ऑलरेडी पता होना चाहिए? रेडियस पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन पता होना चाहिए. रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बेस का एरिया दिया था. सो बेस के एरिया में से पहले मैंने रेडियस फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए था? वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगेगा. क्यों? क्योंकि मुझे टोटल वॉल्यूम पता है. सो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दूसरा ढूंढना पड़ेगा. सो एक बार वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ढूंढ लिया. सो टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा. एक बार वॉल्यूम ऑफ कोन मिल गया तो मैं ये फॉर्मूला यूज करके हाइट ऑफ कोन फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट. सो मैंने अभी स्टेप्स नंबर कर दिए. सो लेट मी राइट इट इन द कॉर्नर. सो ये सारे स्टेप्स में कॉर्नर में वहां पे टॉप राइट कॉर्नर में लिख दूंगा. यू कैन ड्रॉ दिस एज अ रफ डायग्राम एंड देन we'll start solving. सो अब समराइज्ड हमें किस स्टेप को पहले करना है, किस स्टेप को बाद में करना है. यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में ये सब तुमको जो मैंने रफ डायग्राम बनाया था, ड्रॉ इट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर पेज. एंड इफ नीडेड यू कैन ऑल्सो गो टू रफ कॉलम और रफ पेज. एक पूरा का पूरा पेज रफ पेज बना दो एंड यू कैन ड्रॉ दैट बिग डायग्राम एंड थिंक अबाउट इट एंड देन बैक कैलकुलेट. और फिर बाद में ये कहीं पे लिख के फिर इसके हिसाब से तुम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना. ओके, वी विल कीप दिस एज आवर गाइड कि किस किस स्टेप को करते जाना. ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. फर्स्ट विल राइट गिवन. सो गिवन में फर्स्ट आई नो द हाइट ऑफ द सिलेंडर.
सो हाइट ऑफ सिलेंडर हमने रफ डायग्राम में H2 लिया था, राइट? सो आई विल टेक दिस एज H2 इज इक्वल टू 3 centimeter. Height of the cylinder H2 is equal to 3 centimeter. Area of the base is equal to 100 centimeter square. There's a second information. Fill volume of the solid figure is total volume. So total volume is equal to 500 centimeter cube. Next to find, हमने सारा given लिख दिया. अब to find is we are supposed to find total height of the figure. Total height is equal to h1 plus h2 is equal to what? Also अभी यहाँ पे h1 क्या है, h2 क्या है, क्लियर नहीं है, राइट? सो मेक श्योर यू आर ड्राइंग द रफ डायग्राम जहाँ पे वो सब ड्रॉ किया है. ओके, सो आई ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑन द टॉप राइट कॉर्नर. Whoever is checking your paper, उनको पता होना चाहिए तुम जब H1 बोलते हो तो H1 क्या है, V1 बोलते हो तो V1 क्या है, etc etc. ओके, सो आई विल पुट दिस एज हाइट ऑफ कोन. हम क्या ले रहे हैं, हाइट ऑफ कोन H1 ले रहे हैं, राइट? H1, दिस इज H2, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2. Okay, so all this should be clear. Next we are going to start the solution. So first हमें क्या करना है, हमें रेडियस ढूंढना है, राइट? सो एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल टू कितना दिया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, क्यों एक सर्कल है, राइट? सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100. सो मुझे आर स्क्वायर चाहिए, राइट? तो मैं पाई को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई एंड लेट मी से दिस एज 1. ओके, मैं इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स नहीं कर रहा हूँ. व्हाई एम आई डूइंग दिस? मैं इसको ऐसे कैसे क्यों रख रहा हूँ? बिकॉज मुझे लग रहा है कि आगे जाके आर स्क्वायर वैसे का वैसे यूज होगा, कहीं पे आर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे वॉल्यूम के फॉर्मूलाज में आर स्क्वायर होता है, आर कहीं पे भी नहीं होता. सो हर जगह पे वॉल्यूम के फॉर्मूला में भी आगे जाके आर स्क्वायर आने वाला है, तो मैं आर स्क्वायर को डायरेक्टली 100 अपॉन पाई यूज कर सकता हूँ. ओके, अगर तुम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया तो तुम लोग थोड़ा सा टाइम इसके कैलकुलेशन में वेस्ट कर दोगे, और इसका ये यूज भी नहीं, क्योंकि आगे शायद मोस्टली आर स्क्वायर ही यूज होने वाला है. ओके, सो आई कीप इट एज इट इज, और उसको मैंने 1 बोल दिया. ओके, नेक्स्ट. So our first step is done. Radius of the cylinder as well as cone दोनों का same है, right? Now volume of the cylinder. So volume of cylinder. So volume of cylinder के लिए हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, V2 यूज कर रहे हैं. So V2 is equal to pi r square h. सी यहाँ पे भी आर स्क्वायर आ गया, राइट? तो आर स्क्वायर को डायरेक्टली हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो पाई के यहाँ पे मैं पाई ही लिखूंगा, आर स्क्वायर 100 अपॉन पाई लिखूंगा. सो आर स्क्वायर इज 100 अपॉन पाई. और h क्या है, अगेन यहाँ पे h नहीं लिख सकता मैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर h2 लिया हमने, तो इसको h2 लिख दूंगा, और h2 कितना है, 3 सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ पे व्हाट इज गेटिंग कैंसल्ड, पाई एंड पाई इज गेटिंग कैंसल्ड. So I have answer as 100 into 3, 300. Okay. So V2 is equal to 300. Again, इसका यूनिट क्या होगा, हमने रेडियस
रेडियस में हम लोग ने सेंटीमीटर स्क्वायर यूज किया था, राइट? यानी हम लोग का रेडियस का जो वैल्यू है वो है सेंटीमीटर्स में. सो रेडियस को सेंटीमीटर में डाला है, हाइट को भी सेंटीमीटर में डाला है. सो वॉल्यूम किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में. सो ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो मैंने सेकेंड स्टेप भी कर दिया. नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ कोन. फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, सो वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to volume of the total shape plus नहीं minus volume of cylinder, right? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? पूरा टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. टोटल वॉल्यूम क्या है? टोटल वॉल्यूम हम लोग को दिया है 500 माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया. लेट मी से दिस इज 2. सो यहाँ पे फ्रॉम 1 लिखूंगा मैं, इसको 2 दिया. यहाँ पे 300 लिख के फ्रॉम 2. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा मुझे? 500 माइनस 300 200. 500 सेंटीमीटर क्यूब था, 300 भी सेंटीमीटर क्यूब में डाला था, तो इसका यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ अ कोन भी मिल गया. सो मेरा थर्ड स्टेप भी हो गया. नाउ लास्ट स्टेप, हाइट ऑफ कोन फाइंड आउट करना. हाइट ऑफ कोन किस फॉर्मूला में से आएगा? हाइट ऑफ कोन विल कम फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन. ओके, सो आई थिंक आई हैव टू इरेज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस बोर्ड. सो मेक श्योर आई हैव कॉपीड दिस. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में इरेज कर रहा हूं. सो वॉल्यूम ऑफ अ कोन आई नो इज 200 सेंटीमीटर, राइट? यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया. सो दिस इज 200 is equal to pi. I will keep it as it is. फिर आज के हम लोग ने यहाँ पे 1 जिसको 1 जिस एक्सप्रेशन को 1 नंबर दिया था उसमें क्या आया था? 100 अपॉन पाई, राइट? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई. सो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इनटू h1. h1 हमें फाइंड आउट करना है. एंड यहाँ पे जो 3 है डिवाइड बाय 3 इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ओके, सो फर्स्ट आई सी दैट पाई पाई गेट्स कैंसिल्ड, राइट? पाई और पाई कैंसिल हो रहा. नेक्स्ट आई नो दैट आई वांट टू फाइंड h1, राइट? तो h1 को मैं यहीं पे रखूंगा, बाकी सबको दूसरे साइड ले लूंगा. सो यहाँ पे ऑलरेडी 200 है, यहाँ पे ऑलरेडी. ओके, बट लेट मी फर्स्ट राइट ये किस एक्सप्रेशन से लिया. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ अ कोन मैंने कहां से लिखा था? वॉल्यूम ऑफ अ कोन यहां से लिखा था. सो फ्रॉम 3 और आर स्क्वायर का वैल्यू कहां से लिखा था? फ्रॉम 1. सो फ्रॉम 3 एंड 1. नेक्स्ट मैं h1 को एक तरफ रखूंगा, बाकी सबको दूसरी तरफ. तो यहाँ पे ऑलरेडी 200 था, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू h1. सो 100 1 जा 100 2 जा. सो h1 कितना आ गया? h1 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 सेंटीमीटर. सो h1 आ गया. सो हमारा हाइट ऑफ द कोन भी हो गया. ओके, सो लास्ट व्हाट इज रिमेनिंग? टोटल हाइट. टोटल हाइट के लिए क्या आएगा? टोटल हाइट इज इक्वल टू, लेट मी राइट दिस एज एक्सप्रेशन 4. तो टोटल हाइट इज इक्वल टू h1 प्लस h2. h1 है 6 सेंटीमीटर्स, h2 कितना गिवन था? राइट, गिवन था 3 सेंटीमीटर्स. सो h1 प्लस h2 इज 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स. ये आ गया टोटल हाइट. ये कहां से लिखा था हमने? फ्रॉम 4, राइट? 6 है, ये कहां से पता चला? फ्रॉम 4. And finally you have to just write the final answer in a statement form. So final answer in statement form कैसा दिखेगा? क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर. सो द टोटल हाइट of the figure is 9 centimeters. So this will be your final answer, and again don't forget to box it up a pencil line. So that was your
प्रॉब्लम नंबर 7. इट वाज अ लॉन्ग प्रॉब्लम, बट हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करो एंड बैक कैलकुलेट. तुम लोग को क्या पूछा है क्वेश्चन में, तुमको क्या गिवन है, कितने कितने फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं, एंड कीप फाइंडिंग इट सिस्टमैटिकली एक के बाद एक. ओके, so that was your 7th problem. We'll move on to the next problem. Okay, in problem number 8, they have given a figure and they say that the figure is of a toy. ये एक खिलौना है and it is made up of 3 shapes. Okay, here they have a hemisphere यानी आधा sphere, a cylinder in the middle and a cone at the other end. Okay, so hemisphere, cylinder और cone से एक toy बना दिया. और क्या पूछा है? फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टॉय. टोटल एरिया ऑफ द टॉय पूछा है, राइट? सो टॉय का जो बाहर वाला हिस्सा होगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है. सो हेमिस्फीयर के दो एरियाज होते हैं, राइट? एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में ये जो बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया वो प्लस अंदर का सर्कल. बट अभी टॉय का जब एरिया पूछा है तब अंदर का सर्कल नहीं लेना है, राइट? क्योंकि वो तो टॉय के अंदर चला गया, तो उसके एरिया में काउंट नहीं होगा वो. सो इसके लिए तुम्हें पहले हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी सिर्फ बाहर का हिस्सा. ओके, नेक्स्ट तुम्हें सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ का जो सर्कल है, यहाँ का जो सर्कल है टॉय के अंदर चला गया. सो टॉय के सरफेस एरिया में नहीं आएगा वो. सो सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा. और लास्टली इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका जो सर्कल है वो भी टॉय के अंदर चला गया. सो तीनों का तुम्हें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना और तीनों को ऐड कर देना. जब तीनों को ऐड कर दोगे यू विल गेट सरफेस टोटल एरिया ऑफ द टॉय. ओके, सो हेमिस्फीयर के एरिया का क्या फॉर्मूला? आइनोस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर. तो इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? पाई का तो वैल्यू तुम्हें पता है, आर का वैल्यू चाहिए. सो इसका जो सर्कल का रेडियस है वही सेम इसकी भी सर्कल का रेडियस होगा, राइट? सो इसका भी रेडियस 3 होगा. तुम्हें पता है यहाँ पे 3 स्क्वायर आ जाएगा. सो ये तुम लोग फाइंड आउट कर लोगे, राइट? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर. नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, वो कितना होगा? इट विल बी 2 पाई आर एच. इफ यू रिमेम्बर, अगर ये सिलेंडर है और इसको मैंने ओपन कर दिया तो ये शीट की तरह दिखेगा. ये होगा हाइट और ये होगा नीचे का जो ये सर्कल है उसका रेडियस जो होगा, सॉरी सर्कल का सरकमफरेंस जो होगा 2 पाई आर. इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर इंटू एच, तो तुम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा. सो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके लिए क्या क्या चाहिए? हाइट चाहिए, रेडियस चाहिए. अगेन रेडियस तो मिल गया 3 है. ओके, सो रेडियस तो तुम लोग का 3 है. हाइट क्या है? 40 दिया है क्वेश्चन में, फिगर में दिया था 40, और 2 इंटू पाई कर लोगे तुम लोग, राइट? सो ये भी आ जाएगा. लास्टली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है पाई आर एल, राइट? इसको तुम लोग को याद करना है, पाई आर एल. और यहाँ पे एल क्या है? कर्व्ड स्लांट हाइट. ये जो है ये है एल. तो ये हमें नहीं पता. सो ये तो नहीं पता, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट? सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा. सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या है 9 प्लस 4 स्क्वायर क्या है 16. सो ये हो गया 25 एल स्क्वायर. टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5. सो एल इज इक्वल टू 5. ये छोटा सा कैलकुलेशन से तुम लोग को स्लांट हाइट आ गया. तो यहाँ पे बस स्लांट हाइट सब्स्टिट्यूट कर दो. पाई का वैल्यू तुम लोग को ऑलरेडी पता है, रेडियस है 3 और एल हम लोग ने फाइंड आउट किया 5. तो बस तुम लोग को ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, और तीनों को फिर ऐड करना है. दैट विल बी योर एरिया ऑफ अ टॉय. आई एम नॉट सॉल्विंग दिस फॉर यू. मेक श्योर यू आर सॉल्विंग दिस बाय योरसेल्फ. इट्स अ वेरी सिंपल सम. पहले तुम लोग को स्लांट हाइट फाइंड आउट करना है. स्लांट हाइट फाइंड आउट करने के बाद सबका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. वंस यू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया, ऐड ऑल ऑफ देम. बट इसको कैसे लिखते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ज्योमेट्री में सिर्फ आंसर लाना इनफ नहीं है, तुम लोग किस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हो ये भी इंपॉर्टेंट है. सो अगेन फर्स्ट राइट गिवन. गिवन में हेमिस्फीयर पार्ट का क्या रेडियस है, फिर बाद में सिलेंडर का क्या हाइट है, क्या रेडियस है, कोन का क्या हाइट है, क्या रेडियस है, सबके लिए अलग अलग सिंबल ले लो. फिर बाद में टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. फिर बाद में सोल्यूशन. सोल्यूशन में पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इन तीनों को नाम दे दो. इसको 1 बोल दो. इसमें जब तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे तब बोलो फ्रॉम 1.
इसका जो आंसर आएगा कर्व सरफेस एरिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, फिर बाद में फाइनल में टोटल एरिया इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल दीज एंड फ्रॉम 2, 3 एंड 4। तो उसको बहुत सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करने आना चाहिए। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल सम। आई एम trusting you all to do that carefully. Okay, I have almost solved the sum. Okay, we'll see the next sum. Okay, so in the 10th problem they have given a figure. Figure is made up of two shapes. Okay, ऊपर वाला पार्ट कौन है, नीचे वाला पार्ट हेमिस्फीयर है, और क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सो लेट अस सी वन बाय वन। वॉल्यूम कैसे आएगा, ये ऊपर वाला जो कोन है उसका वॉल्यूम प्लस नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय मिल जाएगा, राइट। सो वॉल्यूम इज वेरी इजी, ऊपर के कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, नीचे के हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, दोनों को ऐड कर लो। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय भी सेम पिछले सम की तरह। ओके, सो यहाँ पे जो कोन का एरिया है दो टाइप्स के, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अभी इसमें टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस ये सर्कल का सरफेस होता है, बट सर्कल तो टॉय के अंदर चला गया तो टॉय का सरफेस एरिया में नहीं आएगा वो। सिमिलरली हेमिस्फीयर के दो एरियाज है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ये जो बाहर के कर्व सरफेस एरिया वो प्लस अंदर के सर्कल का एरिया, बट अगेन सर्कल अंदर चला गया टॉय के तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे टॉय के एरिया में। सो तुम्हें सरफेस एरिया ऑफ द टॉय के लिए क्या फाइंड आउट करना है, कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर देना तो वो आ जाएगा। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई विल ट्राई टू डू दिस सम। फर्स्ट let us see the formulas. Okay, formula for curved surface area of cone. Curved surface area of cone का क्या फॉर्मूला, पाई आर एल। यहाँ पे एल है क्या हमारे पास, एल नहीं है, राइट। हमारे पास हाइट है और रेडियस है, तो एल हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप शुड बी एल। देन वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3। रेडियस भी है हाइट भी है तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सो इसमें रेडियस है हमें पता है 3 है तो ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला है, इसको कैसे याद करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, राइट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज what is volume of sphere? Volume of sphere को कैसे याद करते हैं, फर्स्ट राइट surface area of a sphere 4 pi r square, then to find volume of sphere divide this by 3 and r square को r cube कर दो, और फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करने के लिए इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। सो इट इज 4/6 पाई आर क्यूब। तो इसमें भी सिर्फ रेडियस की जरूरत है, रेडियस हमारे पास है। ओके, सो बस हमें एल फाइंड आउट करना है। एक बार एल फाइंड आउट करेंगे तो हम ये सीधे लाइन से सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। गिवन radius r equal to 3 centimeters, height h is equal to 4 centimeters. Next to find, क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। Do not write this in short form. Okay, I have a very bad habit of writing this in short form. तो तुम लोग को आदत लग गई शॉर्ट फॉर्म में लिखने की तो तुम लोग एग्जाम में भी गलती से वही लिख दोगे और फिर स्क्रैच वगैरह करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ओके, ये टू फाइंड, और लेट अस बिगिन विद आवर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन में फर्स्ट फाइंडिंग द स्लांट हाइट। We know that this is a right angle triangle. Okay, so I can write from the figure L square is equal to 4 square plus 3 square, right? Hypotenuse square is equal to
one side square plus second side square. So L square is equal to 4 square plus 3 square. So L square is equal to 4 square 16, 3 square 9. So L square is equal to 25. Next, taking square root on both sides. Okay, so taking square root on both sides. So L square का L हो जाएगा because square and square root cancel each other. So L is equal to square root of 25 is 5. Again इसका यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 4 और 3 को भी सेंटीमीटर में डाला था. So L is equal to 5 centimeters. Let me say this as 1. Next, we'll find all the values for cone. Okay. So first I have to find curved surface area of cone. So curved surface area of cone is equal to C1 लिख रहा हूं मैं, so that मुझे बार बार इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा. So C1 is equal to pi r l. pi का वैल्यू let me take it as 3.14 into r. रेडियस का वैल्यू है 3 एंड l का वैल्यू है 5. मैंने यहाँ पे 22/7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 22/7 लूंगा अगर मैं तो 7 से कैंसिल करने के लिए कुछ भी नहीं है. सो इसको इसलिए मैंने 3.14 लिया. अगर मुझे सब ऐड करना है, सो लेट मी नॉट एक्चुअली सॉल्व दिस फॉर नाउ. इसको जस्ट 3 into 5 में मुझे पता है 3 into 5 क्या है, 3 5 are 15. और पाई को मैं वैसे के वैसे रख दूंगा, बाद में देखूंगा पाई का क्या करना है. सो पाई into 3 into 5, so this is 15 pi, and let me call this as 2. Next, volume of the cone. Okay, volume of cone. So volume of cone को मैं again V1 बोल देता हूँ, so that I don't have to write it again and again. So volume of cone V1 is equal to volume of cone का formula pi r square h pi 3. So pi को मैं वैसे के वैसे लिखूंगा r square क्या होगा 3 into 3 multiplied by h. हाइट कितना है 4 and the entire thing divided by 3. So यहाँ पे 3 will get cancelled. मुझे क्या मिलेगा, height is 4, right? Let me write that clearly. Height is 4. So 3 4s are 12, तो मुझे यहाँ पे 12 pi मिलेगा. So V1 is equal to 12 pi. So let me write this as 3. So कोन के दोनों चीजें मैंने फाइंड आउट कर लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम. अब मुझे फाइंड आउट करना है, अगेन लेट मी राइट द यूनिट्स. यहाँ पे यूनिट क्या हो गया, सब कुछ हमने सेंटीमीटर में डाला है. सो कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब. और ये 2 है, राइट? यहाँ पे 1 ऑलरेडी लिखा है. सो दिस इज माई 2, दिस इज 3. सो कोन के दोनों चीजें मैंने फाइंड आउट कर लिए. अब आई विल गो टू हेमिस्फीयर. ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. Let me write this as C2 so that I don't have to write it again and again. So C2 is equal to कितना हमने फाइंड आउट किया था, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4 pi r square का हाफ 2 pi r square. So पाई को वैसे ही रहने दूंगा मैं, 2 into pi into r square क्या है 3 into 3. So 3 3s are 9, 9 2s are 18. So इसका आएगा आंसर 18 pi. अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. दिस इज माय फोर्थ एक्सप्रेशन. एंड लास्ट आई हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर volume of hemisphere
is equal to, let me write this as V2. So V2 का फॉर्मूला क्या है, हमने अभी फाइंड आउट किया था, राइट? इट इज 4/3 का हो जाता है 4/6 पाई आर क्यूब. सो 4/6 इंटू पाई को वैसे के वैसे आर क्यूब, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3. अगेन I can cancel 6. So 3 1s are 3, 2s are 2 1s are 2 2s are 4. So what am I left with? यहाँ पे 3 into 3 9, 9 2s are 18. So ये भी आ गया मुझे 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब. 3 3s are 9, 9 2s are 18 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो सारी क्वांटिटीज मुझे मिल गए. नाउ अभी फाइनल आंसर्स लिखने हैं. ओके, तो पहले क्या, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. सो सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू C1 प्लस C2, राइट? यहां से C1 और यहां से C2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2. C1 क्या होगा? C1 इज 15 पाई प्लस C2 क्या है? 18 पाई. सो 15 पाई प्लस 18 पाई कितना होगा? 8 9 10 11 12 13 33 पाई. सो अभी यहाँ पे पाई लिखने के बजाय लेट मी राइट द रियल वैल्यू. ओके, सो 33 इंटू 3.14. इसको कैलकुलेट करके जो कुछ भी आंसर आएगा दैट आई विल राइट हियर. सो वेयर कैन आई कैलकुलेट? वी कैलकुलेट हियर. ओके, सो 3.14 इंटू 33. I hope you all can see it. Okay, so 3 4s are 12, 3 1s are 3 4, 3 3s are 9x 9 4 2. So I will get 2 6 9 13 1 10 and 103.62. So इसका आंसर मिल रहा है 103.62. अगेन दिस इज कर्व सरफेस एरिया, राइट? सरफेस एरिया यानी सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली आई विल कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू V1 प्लस V2. यहाँ पे जो C1 एंड C2 हमने सब्स्टिट्यूट किया वो कहां से लिया? हमने 2 और 4 से, राइट? 2 और 4 से. अगेन यहाँ पे जो हमने कर्व स्लांट हाइट सब्स्टिट्यूट किया था 1 से किया था. सो राइट इट फ्रॉम 1. ओके, फ्रॉम 1. फिर यहाँ पे C1 C2 कहां से? 2 और 4 से सब्स्टिट्यूट किया. सो फ्रॉम 2 एंड 4. यहाँ पे V1 एंड V2 कहाँ पे है? V1 यहाँ पे है 12 पाई प्लस V2 यहाँ पे है 18 पाई, राइट? इसको क्या बोलूंगा मैं? फ्रॉम 4 एंड, इसको नंबर नहीं दिया अब तक, राइट दिस एज 5. सो फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5. ओके, सो 12 पाई प्लस 18 पाई कितना हो गया? 30 पाई. ये हो गया 30 पाई. सो पाई का वैल्यू लेट मी पुट इट एज 3.14. सो व्हाट विल माय आंसर बी? माय आंसर विल बी 942.0. Okay, and my point will come 33 into 3 94. यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. You all can try to do this calculation by yourself. मैंने यहाँ पे देखा कि 33 से मल्टीप्लाई किया था. सो एक बार 3 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया था मैंने, वही नंबर यहाँ पे मैंने रख के पॉइंट डाल दिया. सो माय आंसर इज 94.20 सेंटीमीटर क्यूब.
So that's my answer. So I have to still write the final answer. Okay. तो मेरे पास okay, you all could not see this. Okay. So 30 into pi था, so 30 into 3.14 किया मैंने, जो मुझे आंसर आ गया 94.20. Okay. So फाइनल आंसर लिखना बाकी है. फाइनल आंसर में तुम लोग क्या लिखोगे? The volume of the toy is 94.20 centimeter cube and surface area of the toy is 103.62 centimeter square, और उसको बॉक्स में डाल दोगे. Then your sum is complete. Okay, अगेन दिखता बहुत बड़ा है, कैलकुलेशंस वगैरह है, बट बहुत सिंपल था. पहले इसका कर्व सर्फेस एरिया ढूंढो, इसका कर्व सर्फेस एरिया ढूंढो, दोनों को ऐड कर दो. नेक्स्ट इसका वॉल्यूम ढूंढो, इसका वॉल्यूम ढूंढो, दोनों को ऐड कर दो. दोनों के फॉर्मूलाज अगर तुम लोग को बाय हार्ट अच्छे से होंगे तो ऑल दिस इज वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग. नेक्स्ट we'll see our last question for the part. Okay, so the last sum of this practice set is question number 12. Okay, so the question number 12 reads, a cylindrical glass contains water. So एक cylinder shape में glass है और उसके अंदर इतना पानी भरा है. Okay, a metal sphere of diameter 2 centimeter is immersed in it. Immersed यानी उसके अंदर पानी के अंदर है. Okay, so sphere ये जो ब्लैक कलर में है उस मेटल स्फीयर है और उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर का पानी के अंदर है और तुम्हें वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा. ओके, तो अभी जस्ट इमेजिन यहाँ पे स्फीयर नहीं होता. ओके, अगर यहाँ पे स्फीयर नहीं होता तो पानी का शेप क्या है? पानी का शेप सिलेंडर का शेप है. क्यों? क्योंकि पानी को जिस भी कंटेनर में तुम लोग डालोगे उसी कंटेनर का शेप ले लेता है पानी, राइट? सो पानी को सिलेंड्रिकल ग्लास में रखा है तो पानी का शेप भी सिलेंडर हो गया. सो हमें हमारे पास उसका हाइट है. सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच. सो हाइट हमारे पास है 30, राइट? डायमीटर है 14, यानी 14 का आधा 7 विल बी इट्स रेडियस. सो रेडियस भी है, हाइट भी है. सो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजीली मिलके हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर पता कर सकते थे. बट यहाँ पे भी स्फीयर आ गया. सो अभी ये जो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे उसमें सिर्फ पानी का वॉल्यूम नहीं है, उसमें स्फीयर का भी वॉल्यूम इंक्लूडेड है. सो तुम लोग क्या करना है, इसमें से बस वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम कट करना है. ओके, सो तुम लोग ये नहीं करोगे. I will say volume of water is equal to volume of cylinder. So पूरा का पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं ले रहे, जिसमें पानी है सिर्फ उस सिलेंडर का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लिया माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर दो. तुम लोग को किसका वॉल्यूम मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर का. सो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, फिर स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, तुम लोग को वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा. ओके, so I'm not going to solve this for you all. I'll just quickly write the formulas and then tell you all क्या क्या values है. Okay, so volume of cylinder का क्या formula है? Volume of cylinder का formula है pi r square h. यहाँ पे pi का value you all know. pi का volume या तो 22/7 ले लो या 3.14 ले लो, कुछ भी चलेगा. 3.14 into r square. यहाँ पे रेडियस क्या है? रेडियस है सॉरी डायमीटर क्या है? 14. सो रेडियस क्या होगा? 7. सो 7 into 7 क्योंकि आर स्क्वायर है. हाइट क्या है? 30. सो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, तुम्हें यहाँ पे बस वेरिएबल क्या है? रेडियस. सो रेडियस तुम्हें पता है इसका पूरा का पूरा डायमीटर 2 है तो रेडियस उसका आधा होगा. रेडियस उसका आधा यानी 2 का आधा 1. सो यहाँ पे माइनस 4/3 into 3.14 into r cube. So 1 into 1 into 1. So इसको तुम लोग इग्नोर कर सकते हो. 1 into 1 1 ही होगा, राइट? सो बस 4/3 into 3.14. सो ये दोनों को कैलकुलेट करके माइनस कर दो, तुम लोग को वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाना चाहिए. अगेन वेरी सिंपल. यहाँ पे बस तुम लोग को क्या ध्यान रखना था? तुम लोग को ये ध्यान रखना था कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी इंक्लूड है क्योंकि स्फीयर उसके अंदर है. सो बस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को उसमें से माइनस कर दो, वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ वाटर. आई होप यू कैन सॉल्व दिस. ओके, वेरी इजी, जस्ट कैलकुलेट करना है इसको. Okay, that's it for today. We have completed the remaining sums also. Next time we are going to start with the next practice set, which is practice set 7.2. उसमें it's about frustrum. Okay, it's a new shape that we are going to learn. तो पहले उस shape के बारे में जानेंगे, उसके formulas देखेंगे, and then we will move on to solving the problems from the practice set. Okay, that's it for today. See you guys. Bye.